Hello my beautiful students, so welcome back to your own channel. Is called as Mathematics by Rumina, and in this video today we're going to start with your derivative. That means we are going to start the chapter which we have left in class 11, which was limits and derivative. Limits part था continuity का, अब है हमारे पास derivative from 5.2. So let's start and do that. So first of all, I'm just going to revise you the formulas that we have. So first of all, I know everyone knows the decent formula, which is basically yours. A very simple formula is derivative of x की power n, which is basically equals to nx की power n minus 1. Second is derivative of your sin x, which is equals to your simple है cos x. Third is derivative of cos x, which is basically equal to sin x minus sin x. यहाँ पे एक चीज़ रखना, I can write derivative by this sign also, that is derivative with respect to x, or bracket, and this is dash. This sign is also of derivatives. Okay. Fourth, derivative of your tan x would be your sec square x. Fifth, derivative of your cot x is basically minus cosecant square x. Sixth would be derivative of your secant x is basically equals to secant x tan x. Seventh, derivative of your cosecant x would be equals to minus cosecant x cot x. Okay. Now, eighth one, derivative of log x would be basically equals to 1 over x. Ninth would be derivative of e की पावर x is basically equals to e की पावर x. ये डेरिवेटिव कुछ फॉर्मूलाज थे, कुछ जो बीच में आता है वो आपको पक्का लिखवा दूंगी. These were the main formulas that we need to remember. We also have the product rule, quotient rule and the chain rule. So product rule, it says me that if I have the derivative of u dot v, so I'm just going to do derivative of u v as it is plus derivative of v and u as it is. Simple formula. Then we also have your quotient rule, which says u upon v derivative is going to be equals to denominator v का square, जो denominator आया वो यहाँ पे as it is, and now derivative of u minus derivative of v and u as it is. This is called as quotient rule. And the most important one, that is chain rule. For that we have f of g of x, because normally we have combinations of the we have the combinations of the functions, or you can just say this term as the जो हम कहते हैं ना composite functions, तो ये composite functions को represent करते हैं. So that is basically your derivative of f, firstly gx as it is, and then the derivative of your gx also. ये मेरे पास चेन रूल था. With the help of questions we are going to understand how to utilize all these formulas all together. So now let's not waste time. If you just want to take a screenshot, hurry up and take a screenshot. I'm going to start with question number 1 in some seconds. So let's get ready class. Question number 1, simple question है, derivative with respect to the x sin x square plus y. So firstly इसको y let कर लेते हैं. Y is equals to sin x square plus 5. अब देखो ये पूरा एंगल है, so let's treat it as an angle only. So dy by dx. Now what is derivative of sin x? Derivative of sin x was यहाँ पे clear था, cos x था. So it would be cos angle as it is, जो भी लिखा हुआ है वो लिख दो, x square plus 5. And now the derivative of x square plus 5 कितना होगा? 2x होगा, because derivative of constant is your 0. Okay? तो यहाँ पे 2x आ गया. So basically मेरा आंसर कितना आया? 2x cos x square plus 5 आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आ गया आंसर. नाउ आंसर 2, दैट इज cos sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? सो अगेन लेट y इज इक्वल्स टू cos sin x. सो dy बाई dx मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से? दैट वुड बी cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन. सो माइनस साइन sin x, एंड नाउ द ब्रैकेट वन, दैट इज साइन x डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. सो यहाँ से आंसर आया माइनस cos x sin x. डन. Question number 3, derivative of sin ax plus b. So y is equals to मेरे पास क्या है? sin ax plus b है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा?
dy by dx, the derivative of sin x is basically equals to your cos ax plus b as it is, and now the derivative of ax plus b क्या होगा, x है तो यहाँ 1 आ जाएगा, दैट इज a, और b बीइंग कांस्टेंट 0. सो ये आपका आंसर हो गया. 1 लाइनर्स आंसर है, बहुत सिंपल है. फिर भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और डिटेल वीडियो बना दूंगी. बट ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रेड 11th में, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये सब आना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी डेरिवेटिव जल्दी से कर देते हैं. y इज इक्वल्स टू सीकेंट tan रूट एक्स. अब देखो बेटा, सीकेंट है तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, दैट इज सीकेंट एक्स tan एक्स. अब ये x ना पूरा ये वाला एंगल कंसीडर होगा यहाँ पर. सो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स. ये सिंप्लीफाई हो गया. नाउ वी विल डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस tan रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ tan x इज बेसिकली इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x. यहाँ मैंने लिखा है स्पेशली, tan x का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है. सो इट वुड बी सीकेंट स्क्वायर x, बट यहाँ पे x ना होगी, यहाँ पे रूट x है, तो रूट x. एंड नाउ द डेरिवेटिव ऑफ रूट x ऑल्सो विच इज 1/2 रूट x. प्लीज़ ये रूट x कैंसिल मत करना, ये एंगल है इसका, ये सिंपल मेरे पास वेरिएबल है. सो आंसर क्या आएगा यहाँ से, 2 रूट x डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे आएगा सीकेंट tan रूट x tan रूट x, and then we have secant square root x. ये आंसर है. आंसर नंबर 5, let y, again y is equals to sin ax plus b upon cos cx plus d. डेरिवेटिव करना है मुझे इसका, कुछ नहीं है, dy by dx निकालेंगे, and we are going to use your quotient rule. So cos square cx plus d. Now cos cx plus d as it is. डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, cos ax प्लस b, और मुझे पता है डेरिवेटिव ax प्लस b क्या होगा, सिर्फ सिंपल a होगा, बिकॉज x का 1 आ जाएगा, b का 0 हो जाएगा. a यहाँ लिख दिया, माइनस नाउ साइन ax प्लस b एज इट इज, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज cos cx प्लस d. सो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन cx प्लस d, एंड डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस d वुड बी ओनली c. ये इसका आंसर हो गया. इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट फर्दर ऑन यू मे डू इट, देयर इज नो एज सच कंपल्सेशन. ठीक है ना, कुछ कंपल्सरी नहीं है. प्लस हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करने में, बिकॉज मेरे पास जो कॉन्स्टेंट है वो अलग अलग है, दैट इज योर a एंड c. तो इवन मैं साइन कॉस का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाऊंगी. सो वी कैन जस्ट लीव द आंसर ओवर हेयर इटसेल्फ. आंसर 6, y इक्वल्स टू cos x की पावर 3 इंटू साइन square x की पावर 5. We are just going to use your product rule over here. So dy by dx which is derivative of this cos x की पावर 3 क्या आएगा, यहाँ पे पहले cos का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, माइनस साइन x की पावर 3, एंड नाउ द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 विच इज़ योर 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज़, प्लस नाउ cos x क्यूब एज इट इज़. डेरिवेटिव क्या होता है साइन का, दैट इज cos, सॉरी पहले यहाँ 2 का डेरिवेटिव करेंगे, जो पावर है बेटा पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे हम लोग. सो दैट वुड बी बेसिकली 2 साइन x की पावर 5, ये आया. अब देखो डॉट लगा के डेरिवेटिव साइन क्या होता है cos, सो cos x की पावर 5 एंड नॉट डेरिवेटिव x की पावर 5 विच इज़ योर 5x की पावर 4. बस फाइनल आंसर यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे. सो माइनस 3x स्क्वायर साइन x की पावर 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस 5 इंटू 2 10 x की पावर 4 cos x क्यूब, ये आया, ये मैंने 10 भी इंक्लूड कर दिया, x की पावर 5 भी. क्या बचा मेरे पास, साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, एंड दैट इज योर आंसर. वी आर डन टिल क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7, 2 रूट cot x स्क्वायर. सो बस आंसर 7 के लिए लेट y इज इक्वल्स टू 2 रूट cot x स्क्वायर. देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू डेरीवेटिव क्या होता है मुझे पता है, ये है x की पावर 1/2. सो बेसिकली आगे आएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज 1/2 x की पावर, इट वुड बी माइनस 1/2, तो ये नीचे आ जाएगा. तो बेसिकली बनता है 1/2 रूट x बनता है. तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/2 रूट cot x स्क्वायर.
नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता है, यहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. सो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर था एंगल, इनटू में 2x. एक्स स्क्वायर 2x बन गया. 2 और 2 कैंसिल आउट कर देते तो क्या बचेगा, माइनस 2x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर. अब तुम्हारी मर्जी है, इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई यू कैन डू दैट, और यू कैन जस्ट लीव योर आंसर ओवर हेयर इटसेल्फ. फुल नंबर मिलते हैं बेटा यहाँ से यहाँ पे छोड़ने पे भी. ये मेरा निकला dy बाय dx. सिमिलरली y इज इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स. सिंपल है काफ़ी. dy बाई dx क्या बन जाएगा मेरे पास, कॉस का होता है माइनस साइन रूट एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स. सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये एंगल है और ये सिंपल वेरिएबल है. तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, एंड दैट इज योर सिंपल सा आंसर. नाउ वी हैव 2 क्वेश्चंस लेफ्ट फॉर योर डिफरेंशियल पार्ट. ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. सो लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड दैट. Prove that the function f defined by fx equals to modulus of x minus 1 where x belongs to R is not differentiable at x equals to 1. मुझे प्रूव करना है कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, वो डिफरेंशियबल नहीं है at x equals to 1 के ऊपर. So now let's start on it. अब देखो बेटा, what is the formula for differential? We have left hand derivative and we also have your राइट हैंड डेरिवेटिव. तो मुझे दोनों पे ही काम करना है. सो लेट्स वर्क ऑन बोथ द पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या दिख रहा होगा, व्हाट इज़ अ फॉर्मूला. सो एफ डैश एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ. अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी मेरे पास x होगा, सो x माइनस एच माइनस एफ ऑफ h अपॉन माइनस एच. ठीक है, यहाँ पे x आएगा. सिमिलरली आई हैव f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, सॉरी f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. ये क्या है, ये मेरे पास फॉर्मूला है फॉर माई राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. सो बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर, ये फॉर्मूला काफ़ी काम का फॉर्मूला है बच्चा आपका, और आपको ये एग्जैक्टली ऐसे याद भी करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन. यहाँ पे मेरा x क्या है, 1 के इक्वल है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू रिप्लेस इट बाय 1. सो नाउ सिंपली मैं अपना डेरिवेटिव निकालूंगी, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पे देखो आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस मॉडुलस फंक्शन. पहले सिंप्लीफाई भी कर देते हैं एक बार. x माइनस 1 कब आएगा, जब x माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा. माइनस x प्लस 1 कब आएगा, व्हेन माई x माइनस 1 इज लेस देन 0, दैट मीन्स आई कैन से व्हेन माई x इज ग्रेटर देन 1. करेक्ट है, मेरे पास यही मेरे पॉइंट्स बनने वाले हैं. सो इसी पॉइंट्स पे हम जो है अपना वर्क करेंगे, और लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच. ये आ गया. अब देखो 1 माइनस एच ये फंक्शन था मेरा, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देते हैं. सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इट वुड बी सिंपली एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से. सो 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस व्हाट इज f1. बेसिकली वी हैव, अगर मैं f1 देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे को 1 पुट करना होगा. सो 1 माइनस 1, बेसिकली 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो इट कैन बी गेट कैंसिल आउट. यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा बेटा, माइनस एच है ना. इफ़ यू कैन जस्ट सी इट वेरी केयरफुली, यहाँ मेरे पास बचने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक माइनस एच, सॉरी यहाँ पे बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच. मॉडुलस है तो h खत्म, सॉरी माइनस साइन खत्म, सो इट वुड बी h अपॉन माइनस एच, दैट इज माइनस 1. सिमिलरली आई विल सॉल्व बाय दिस पार्ट, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h, which would be basically equals to limit h tends to 0, that would be f of 1 plus h क्या होगा बेटा,
बस यहाँ पे 1 प्लस एच पुट कर दो मॉडुलस के अंदर. सो 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1, तो अगेन वही 1 माइनस 1 ही आने वाला है मेरे पास. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड नाउ सिमिलरली आई जस्ट नो दैट दिस पार्ट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माई, सॉरी अपॉन में एच लिखना भूल गई. ये 0, यहाँ पे क्या है एच मॉडुलस भी है और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. सो एच अपॉन एच इज 1. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट 1. ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आप यूज़ करना, हर बार आंसर ठीक ही आएगा. टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सिंपल भी है. प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन defined as fx equals to bracket x 0 less than x less than 3 is not differentiable at 1 and 3. what is greatest integer function? मैंने हर वीडियो में बताया, अगर मैं 2.1 ले लूँ और 2.9 ले लूँ तो दोनों की वैल्यू जो है वो 2 पे ही अपनी जाएगी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप वाइज फंक्शन, जो हमेशा अपनी पीछे वाली वैल्यू को लेता है, आगे वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है. सो पहले एट x इक्वल्स टू 1 हम लोग निकालेंगे. x इक्वल्स टू 2 मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, पहले ही बता रही हूँ. सो x इक्वल्स टू 1 पे काम करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड योर राइट हैंड डेरिवेटिव. सो सेम वर्किंग जाएगी फॉर 2 ऑल्सो. दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन बिकॉज इतना स्पून फीड नहीं होना चाहिए. सो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन माइनस एच. राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच. वैल्यू पुट करते हैं एंड लेट्स सी कि मेरे पास क्या मेरा आंसर आने वाला है. सो इफ़ यू जस्ट सी थिंग्स वेरी केयरफुली, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0. देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या है, इट इज़ बेसिकली f x माइनस एच विच इज़ बेसिकली f1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच. अब यहाँ पे देखो वी बेसिकली हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, इट वुड बी 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच. 1 माइनस एच मतलब कि अगर मेरे पास जस्ट सपोज 1 पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि जैसे हम 1 है, यहाँ मेरे पास भी 1 की वैल्यू है, 1 माइनस द नेबरहुड, तो वैल्यू तो 0 पे जाएगी ना, बिकॉज 1 से छोटी वैल्यू है. तो मैंने बताया था कि वो वैल्यू जो है उसकी लोअर वैल्यू पे अप्रोच करती है. सो दिस विल बी 0 बेसिकली. सो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच. कैंसिल कैंसिल, ये तो 1 ही रहेगा. सो 1 अपॉन 0 बिकॉज h टेंड्स टू 0 है, 0 आएगा, इट वुड बी अनडिफाइंड. क्लियर हो गया. सिमिलरली यहाँ पे अप्रोच करते हैं. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच. 1 प्लस एच का मतलब है कि 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू का मतलब है 1 पे अप्रोच करेगी. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1, यहाँ का 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन एच. 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है. सिंस वी नो दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट 1. we will get the similar working for 2 also. Please do it and please comment once you are done. Thank you so much students. This was your 5.2 complete exercise in your 18 minutes. Simple tha, easy tha to understand. If there is any doubt, please comment below. I'm there to help you out. Study hard, stay healthy. Bye bye you all.